फॉक्सी का हम सभी कैंसर जानते हैं, वी ऑल नो इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना. एंड इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, टू मेक people aware, including our staffs, about the preventive aspect of cancer. When we can prevent the cancer, then we should know, we should have the awareness which cancer we can prevent and how, right? तो this is the प्रतिबंध नाम दिया है उन्होंने कि हम इसके लिए बंधन में है, हमें रोकना है जो भी करके, right? तो दो कैंसर हैं जो फीमेल कैंसर हैं, एंड दैट इज प्रिवेंटेबल और वेरी इजी टू डायग्नोज अर्ली. वो ले लेगा बच्चे, हमें मिल जाएगा, तो बैठ के सुन लेना, ठीक है. सो फर्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर. वी ऑल नो अबाउट द सर्वाइकल कैंसर. दिस इज द सर्विक्स, इज द वूम्ब ऑफ माउथ ऑफ वूम्ब, एंड द सर्वाइकल कैंसर इज द cancer of cervix. This is the second most common cancer in Indian females after breast cancer. So most common cancer in female is obviously breast cancer in India, and second is cervix. India क्यों बोला? Because abroad में endometrial cancer काफी common है, but in India this is breast is the number one in female and cervical cancer is the second. And in 2020, more than 1 lakh new cases of cervical cancer detected in India. And you all know abroad में rates are really decreasing just because of cervical screening with pap smear and liquid-based cytology and HPV DNA and vaccination. So we can do here also. So why cervical screening is important? We can share this slide, so no need to write. You can just listen, na. Why cervical screening is important? Because why we are telling this cancer is preventable? Because it takes a lot of time, around 10 years, 5 to 10 years to develop a cancer from precancerous lesion which we can detect. Okay, so things which can be diagnosed and to develop the cancer from that precancerous lesion, it takes 2 to 5 years. So if we have facility to diagnose the precancerous lesion, तो 3 to 5 years पहले ही हमें पता चल जाएगा कि कैंसर होने वाला है. So we can treat that. So that is the main crux of this this cervical cancer screening. So this is normal epithelium, फिर LSIL मतलब low स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, फिर जाके सर्वाइकल कैंसर होता है जिसमें लगते हैं कई साल. तो हम पता कर लेते हैं LSIL को, HSIL को पता कर लेते हैं. गोल क्या है? टू डिटेक्ट प्री कैंसरस सर्वाइकल चेंजेस ऑन टाइम टू प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ दीज लीजन्स इनटू फ्रैंक सर्वाइकल कैंसर. और अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है शुरू, तो डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज. Right. So what are the modalities we have? We have VIA. What is VIA? Visual inspection with acetic acid. It is very easy. We do per speculum examination. Everybody knows na. With Casco's or Sims speculum, we can see the cervix. When we apply 2% acetic acid, we can see whiteness because cancerous cell has more amount of protein in it in comparison to glycogen. So protein is high and glycogen content is low in cancerous cell. So when we apply acetic acid, that protein cell become whiter. And when we apply Lugol's iodine, सुना होगा कभी, I don't know, Billy करके ना, visual inspection after Lugol's iodine application, तो उससे कैंसरस वाला लीजन व्हाइट रहता है, बाकी सब महोगनी ब्राउन हो जाता है ना, क्योंकि बाकी सब जगह ग्लाइकोजन है हमारी वजाइना में, हमारी सर्वाइकल सेल्स में, बट जहां पे कैंसर डेवलप हो रहा है वो पेल रह जाता है. राइट. तो इस तरह से हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं. देन कम्स द पैप स्मीयर और साइटोलॉजी. पैप स्मीयर की जगह अभी क्या नया है हमारे पास? लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी.
Why that is more important? Because liquid based cytology has more sensitivity and more specificity. We can miss सेल्स ऑन पैप स्मीयर, क्योंकि पैप स्मीयर हम तो स्लाइड लगाते हैं, है ना, हमने लिया सैंपल, स्लाइड पे लगाया, पता चला वो सेल जो वो वाली है मैलिग्नेंट सेल उस पे आई ही नहीं बाई चांस। और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, रिंस कर देते हैं और उसको हम सेंट्रीफ्यूज से देखते हैं, उसमें निकल के आती है कि है क्या, तो ऑब्वियसली वो वाली ज्यादा अच्छी होगी। एचपीवी डीएनए टेस्ट भी होता है। क्यों एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है? क्योंकि एचपीवी एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हमें पता होगा जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, तो अगर हम उसको पता करते हैं तो भी पता चलता है। पैप स्मीयर के लिए कुछ बेसिक नीड होती है, आप सबको एज अ स्टाफ भी पता होना चाहिए। किसी पेशेंट को अगर एडवाइज्ड है तो यू शुड नो कि 2 दिन पहले से उस एरिया में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। लाइक देयर शुड नो douche, no sex, no vaginal examination, ओके, मेंसेस के आसपास नहीं होना चाहिए। अराउंड 10th डे ऑफ मेंसेस इज द बेस्ट टाइम, बट इट्स नॉट स्ट्रिक्ट लॉ कि 10th डे ही करना है। कोई पेशेंट हमारे पास 8th डे आ गई, 12th डे आ गई तो भी हम आराम से कर सकते हैं, बट हाँ मेंसेस नहीं होने चाहिए। मेंसेस अगर है और पेशेंट जिद कर रही है कि तभी हो सकता है तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी इज एन ऑप्शन, बट वी शुड अवॉइड दैट ऑल्सो एट दैट टाइम। कब से हम स्टार्ट करते हैं? कुछ दिन पहले तक तो इट वॉज 21 years ऑफ एज ऑफ द लेडी इफ शी इज सेक्सुअली एक्टिव। इफ द लेडी इज सेक्सुअली एक्टिव अर्लियर तो वी कैन गो फॉर पैप स्मीयर अर्लियर ऑल्सो इफ पेशेंट आस्क अस। ओके, सो नाउ इट इज 25 years, फॉक्सी ने कहा, तो 25 years के बाद वी स्टार्ट पैप स्मीयर। और 30 से एज ज्यादा है तो हम पैप स्मीयर के साथ एचपीवी डीएनए करते हैं। आप में से कोई बताएगा व्हाई वी डोंट डू एचपीवी डीएनए बिफोर 30 years? मैं बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, पता नहीं अभी भूल गई, मुझे लेबर रूम में चिंता हो रही थी, शायद बैक ऑफ द माइंड में तो गाड़ी दौड़ा दी थी। हाँ तो बताओ, अभी तक वी आर क्लियर ना? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, सो why we are not doing HPV DNA before 30 years? शारण्या, एकता, बसंती। HPV DNA या HPV वायरस हमारी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में कैसे आता है? आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, और वो जितने भी लोग सेक्सुअली एक्टिव होंगे उसी में हम पैप स्मीयर करने जा रहे हैं। एचपीवी डीएनए सबके अंदर होगा, तो बताओ डिटेक्ट करने से क्या फायदा है? सब में मिलेगा, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है ना। एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कैंसर कॉज करता है जब वो लंबे समय तक हमारी बॉडी, हमारे सर्विक्स के आसपास रह जाता है, अराउंड 5-10 years। तो हम 30 years पे देखते। और एक बात और, जब वो हमारी बॉडी में आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कुछ दिन बाद वो अपने आप हमारी बॉडी में अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि एचपीवी को डैमेज कर देती है, खत्म कर देती है। जिनमें एचपीवी खत्म नहीं हो पाता उन्हीं में कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम ये टाइम देते हैं 30 years तक, पहले 35 years तक था कि वो अपने आप बॉडी उसको गायब कर रहे। जिनके में रह गया एचपीवी डीएनए, इसका मतलब दे आर प्रोन टू कैंसरस लीजन्स, राइट? इसलिए वी डू आफ्टर 35 और नाउ दिस इज 30 years। पहले तो हम लोग 35 का वो करते थे, अभी 30 years पे अगर पेशेंट आती है वी हैव टू डू एचपीवी टेस्ट एंड पैप स्मीयर बोथ। फ्रीक्वेंसी, अगर सिंपल पैप स्मीयर किया है जैसे 20 years 25 years से, तो 3-3 साल पे वी विल रिपीट द पैप स्मीयर। इफ वी हैव डिड दिस एचपीवी डीएनए simultaneously, then we repeat after every 5 years. Okay, and 65 years के बाद we can stop if consecutive reports were normal. HPV infection की बात कर रहे थे, human papilloma virus. This is the only practically only this cancer is which is caused by virus. Okay, किसी और कैंसर का हमने कभी वैक्सीन नहीं सुना होगा शायद। हम वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं? किसी इन्फेक्टिव लीजन के लिए। कोरोना का वैक्सीन हमने लगाया, क्यों?
क्योंकि वायरस से हो रहा था ना। फ्लू वैक्सीन लगाते हैं, टीडैप लगाते हैं, रोज लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? वो किसी न किसी जर्म से हो रहा है। तो ये कैंसर के लिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये देखा गया है कि मोर देन 90% कुछ ऐसे भी कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर, जो विदाउट एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी होते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी टेल कि आपको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगानी है, बट फिर भी पैप स्मीयर को आप एग्जाम नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि 10% लीजन्स आर देयर व्हिच कैन बी आफ्टर वैक्सीन ऑल्सो, नॉट रिलेटेड टू human papilloma virus infection. To detect those cases we have to continue pap smear and this thing. हमारे इंडिया में तो बहुत कम लोग एक बार भी कराते हैं pap smear ना। Now people are becoming aware and they are taking cervical cancer vaccine and health checkup में जब से ये pap smear include हो गया तो लोग उसके बारे में भी जानने लग गए। So this is transmitted by sexual intercourse. एंड सिम्टम्स की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, फाउल स्मेल, डिस्चार्ज, है ना, ये सारी चीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है रिलेशनशिप के बाद, तो दैट इज ऑल। किसी भी कैंसर में वेट लॉस शुरू हो जाता है, वीकनेस शुरू हो जाती है जब वो एडवांस हो जाता है, उस तक तो हमें पहुंचने नहीं देना है, ना अपने लिए ना पेशेंट के लिए। ये WHO का गोल है कि 90% हम वैक्सीनेट हो जाएं 30 तक, 2030 तक 70% को हम स्क्रीन कर लें और 90% जो भी है हमारे पास कैंसर ट्रीट हो जाए। सो सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल, वी हैव टू गेट इन्फॉर्म्ड, स्क्रीन्ड एंड वैक्सीनेटेड। ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में कई बार वैक्सीनेशन को लेके कई सारी भ्रांतियां होती है ना, बट इट्स सेफ। आई हैव वैक्सीनेटेड माई बिटिया डॉटर ऑल्सो एट 10 years of age। ठीक है। एंड मैक्सिमम एज 43 years तक होती है, बट मैंने 43 years एज पे ही मैंने लगवाया था, क्योंकि बिटिया को लगवाया तो हस्बैंड को लगा तुमने नहीं लगवाया, तुमने नहीं लगवाया। मैंने कहा टाइम ओवर हो गया यार, बट नहीं, तो फिर लगवा लिया। तो 43 के बाद कोई बहुत रोल नहीं है, 45 के बाद। ठीक है। और फर्टिलिटी पे, फ्यूचर फर्टिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये प्रूवन है। हमारे पास 3 तरह की वैक्सीन होती है, थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि आपको अपने बच्चों को बताना होगा या पेशेंट्स को गाइड करना होगा और अपने लिए भी। वी हैव 3 kinds of vaccines। आज से करीब 1 year पहले तक 2 बाइवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट आती थी। बाइवेलेंट सर्वारिक्स की आती थी और गार्डासिल की क्वाड्रीवेलेंट आती थी। अभी नैनोवेलेंट आ गई है गार्डासिल की, बट बाइवेलेंट ऑलमोस्ट गायब हो गई है। बाइवेलेंट में हमारे पास 16-18 था, जो कैंसर के लिए पॉजिटिव फैक्टर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, 16 और 18 स्ट्रेन। अभी हमारे पास क्वाड्रीवेलेंट कुछ अवेलेबल है, कहीं कहीं मार्केट में है, जिसमें 16, 18 और 6 और 11 होता है। 16 18 HPV स्ट्रेन कैंसर कॉज करता है और 6 और 11 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे को वॉर्ड्स, जेनाइटल वॉर्ड्स देता है। हमने देखा है ना, बॉडी पे कहीं भी वॉर्ड्स देता है। कुछ लोगों के वॉर्ड्स होते हैं, तो हमने देखा होगा प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो वॉर्ड्स बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर बेबी बर्थ हर प्रेग्नेंट लेडी को जो डिलीवरी हुई है उसको गाइड करना चाहिए कि आपको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगानी है ना। तो ये हम वॉर्ड्स होता है ना, तुमने देखा होगा लोगों को होता है। अच्छा, मस्से जिसको बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग मस्से भी कहते हैं। इट्स नॉट कि मोल, मोल तो दिल होता है, थोड़ा ऊपर की जो रफ सा कई बार होता है, दैट इज वॉर्ड्स। कई वाले लोगों को होता है बहुत सारे भयानक ये जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं। मैंने लेडी हार्डिंग में तो मैगट्स पड़े हुए वॉर्ड्स देखे हैं, मतलब भयानक। सेक्सुअल एक्टिव वो बच्ची थी, मतलब गर्ल थी, इट वाज बैड, तो उसके लिए होता है। एंड नैनोवेलेंट में बहुत सारे हैं, देखो वो अभी आया है, मुश्किल से 6-8 महीने पहले मार्केट में आया है। लोग कहते हैं इससे मतलब रीनल कैंसर भी प्रिवेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो देखो कुछ साल बाद ही पता चलेगा कि कितना प्रिवेंशन हुआ। बट नाउ इट इज वी हैव ऑलमोस्ट क्वाड्रीवेलेंट एंड नैनोवेलेंट, और रेट में फर्क है, इसलिए लोग जो ऑप्ट करें उसके लिए जा सकते हैं। 370 मतलब 3700 का कुछ क्वाड्रीवेलेंट है, नैनोवेलेंट आई थिंक 9-10,000 का है फॉर सिंगल डोज। तो हमें 3 डोज के लिए जाना होता है, 0, 2 एंड 6। मतलब 0 डोज से शुरू हुआ, फिर 2 मंथ बाद और फिर 6 मंथ्स बाद फ्रॉम 0 डोज। कभी मान लो किसी का मिस
मिस हो जाए, डिले हो जाए, नो प्रॉब्लम, वो 1 साल बाद भी लगा सकते हैं। ऐसा गाइडेंस है हमारे पास, गाइडलाइंस, कि उसको रिपीट नहीं करना है फिर से। हम उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और 15 ईयर्स से छोटा है कोई बच्चा तो उसको दो डोज काफी है, 0 और 6। कभी कभी हम 0 के बाद 1 मंथ पे भी लगाते हैं। अगर किसी में वॉल्ट हो ऑलरेडी तो हम 1 मंथ पे रिपीट करते हैं, राइट। अदरवाइज बेसिक तो यही है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर एंड करना चाहते हैं तो हमें एचपीवी वायरस का चेन रोकनी पड़ेगी। फॉर दैट पर्पज वी शुड vaccinate 9 out of 10 girls.